A very good afternoon to everyone. Afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so let's start now. Am I audible to everyone? Yes, sir. Echo बहुत है. Yes, sir. Okay, please wait. Okay, good afternoon, everyone. So I think so that now the voice is very much clear. I welcome all of you in this session today. I am Dr. Raman, naturopath, currently doing BPT from Banarsi Das Chandiwala Institute of Physiotherapy. Today with us we have Mr. Gurpreet Singh, who is currently working as senior software engineer at Negaro, a well-known German company, and he has also work experience in Infosys for about 4 years. So over to you, Mr. Gurpreet. Thank you so much, Dr. Aman, for introducing me to this session. It's my honor to be here to discussing the most important topic in everybody's life, what to do after class 12th. So let's start with the slides. So there are many questions which come to your mind, like mentioned here, what should I do? Where, when, and when to start? What are the risks involved? Being a science student, you should always apply your physics, right? I think all are science students here, like engineering, medical, right? So are my subjects appropriate? What are the route? What is the exact route of my subjects? Like if I'll choose medical, if I'll choose engineering, any field, what is the exact route? Are there any risks? So apply your full physics in it. So most important phase in our life is like, should I look for other options or should I drop? This is most important phase in our life. Should I really look for a drop? अगर आप इंजीनियरिंग के एग्जाम्स देते हैं या फिर मेडिकल के एग्जाम्स देते हैं एंड विद योर फुल पोटेंशियल आफ्टर 12 लाइक 3-4 मंथ्स की स्टडी के साथ अगर आप 50%, 40% या 60% भी अगर अचीव कर सकते हैं या कर पा रहे हैं तो यू शुड रियली लुक फॉर अ ड्रॉप. Otherwise, you should look for other options and prepare your studies. So plan your career with positivity, and there are 3 facts I mentioned in this slide. Like this graph, being a science student, apply your physics. I already mentioned, always apply your physics. You should choose a career which has well-known demand, which may be evergreen, maybe competitive or less competitive, right? And all career options are equally demanding, which is the equal sign shown over the screen. And third one is time. All options require equal time. You should have a complete focus on your studies. First of all, to choose your subjects, then to develop your understanding on it. And third, you should require a full focus on it to complete it within required time. So only you know yourself, like you know your likes, dislikes, your passion, your assets, your facts, like only you know your personality. So career should have good income, make appropriate choice and just stick to it, make it happen. So first of all, let's start. First of all, you must congratulate yourself that you have been a part of science student, you have been a part of science field, and you want your career to be part in the science technologies like engineering and medical. So two main fields come to your mind, medical and engineering. I'm here to be part of engineering facts and Dr. Raman is here to be part of medical facts, medical career options.
So this slide, I would like Dr. Raman to describe, like from my side, I can really examine this slide by functional and technical aspect. Like functionally, doctor uses MRI machine, right? And technically, the screen shows the figures, like shown over here. This figure, how this figure is shown. So the beautiful thing is there is a code behind this screen, right? Behind this machine. So here, engineering and medical are all together. So over to Okay, Dr. thank you, to Mr. describe this slide Gurpreet. more in a medical manner. Here I want to add. Thank you. Here I want. Okay, हम इसको एक basic. You are sleeping. साइंस है. आप उठ रहे हो, साइंस है. आप ब्रश कर रहे हो, टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, साइंस है. ओके, यू आर लिविंग इन साइंस. अब ये जो स्क्रीन मिस्टर गुरप्रीत ने शो करी है, इट इज वेरी क्लियर इन द स्क्रीन दैट जो भी हमारी मेडिकल टेक्निक्स है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, पैट स्कैन है, एंजियोग्राफी है, मे बी मेडिकल स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ दोस टर्म्स. सो जितनी भी ये टर्म्स है, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट इंजीनियरिंग. So अगर इंजीनियरिंग है, टेक्निकल हमारे पास सपोर्ट है, then only we can diagnose the patients. So we can say that medical and engineering, they are going hand in hand. Right. Next slide, please. So next slide. So now without wasting much of the time, let's start. What are the different courses? What this session on YouTube also. So if you have any further query, you can go through that. So firstly we have BDS. BDS के बारे में आप सबको पता है, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी. इसमें बच्चों को एक बहुत बड़ा मिथ लगता है कि यार डेंटल सर्जरी लिखा है तो इट इज ओनली रिलेटेड टू डेंटिस्ट एंड इट इज ओनली रिलेटेड टू टीथ. नो, इट इज रिलेटेड टू द होल फेस. आपके पूरा जो फेस है, हेड, नेक. हेड में ब्रेन आता है तो ब्रेन वाला जो पार्ट है वो न्यूरो को हमने दे दिया. लेकिन डेंटल सर्जरी वाले हमारे जितनी भी फेस की सर्जरीज हैं या जितनी भी हमारी फेशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब भी डेंटल सर्जरी के अंदर ही आती है. ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट नीट का एग्जाम बहुत हाई लेवल का एग्जाम है. उसी के थ्रू इसमें एडमिशन होता है. ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन योर स्क्रीन. सो यू कैन बिकम अ डेंटिस्ट, यू कैन बिकम अ लेक्चरर. व्हाई? बीडीएस वालों को पढ़ाने के लिए भी कोई चाहिए. सो यू कैन वर्क एज अ लेक्चरर इन द रिस्पेक्टिव कॉलेज. आफ्टर दैट जो हमारी आज की डिमांड है वो है पीडिया डेंटिस्ट, बच्चों के डेंटिस्ट, जो कि बहुत कम पाए जाते हैं. नॉर्मली पीडिया में लोग मास्टर्स कम कर रहे हैं. तो अगर आप पीडिया में मास्टर्स करते हैं, देन आल्सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप. हियर आई वांट टू ऐड वन पॉइंट कि आज आपको हम जितने भी कोर्सेज बताएंगे, हम उसमें ये चीज मेंशन नहीं कर रहे कि यार इसमें सैलरी कितनी है या फिर हमारा इसमें स्कोप किसमें ज्यादा है किसमें कम है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप enthusiastic हो, you are courageous, you have self confidence on yourself, only then you can succeed every line. Each and every course is equal, as Mr. Gurpreet mentioned in the very beginning. So the admission process is neat. Again, 5-year duration hai. Obviously you can work in a hospital, in a dentist clinic. Here I want to add one more point that in every field, हर एक फील्ड के अंदर हमारे जो रिसर्च का डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा है. आज के टाइम पर जहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है, जो रिसर्च है वो साथ साथ होती रहती है, सो दैट वी कैन मेक अवर फील्ड मोर अपग्रेडेड. ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द डेंटल सर्जरी, if you are interested in the teeth, in the face, in the facial structures of the human body, then you can BDS. Next please. Okay, now the dream of so many medical students, MBBS. ये तो भाई हमारा ड्रीम है. We want to become doctor and yes, we have to do MBBS for that. You can become, you want to become a surgeon, you want to give medicines and you want to do something for the welfare of our society and you want to become a doctor. This is the very most important, we can say the main dream for all the medical students who are currently in class 11th and 12th. उनसे कोई पूछेगा कुछ लिखवाए तो यार मुझे ना डॉक्टर लगाना है, नाम क्या है, ठीक है. स्टडी, लेट्स नो
के अंदर आपको मेडिसिन और सर्जरी के बारे में जाती है। एमडी करते हैं, मेडिसिन करते हैं, तब जब किसी को मेडिसिन अच्छे से प्रिस्क्राइब करना है, यू कैन एक्ट एज यू कैन वर्क एज अ फिजिशियन इन सम क्लिनिक, ओके। और अगर आप एमएस करते हैं, देन एमएस के बाद आप सर्जन बन सकते हैं इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। अलग अलग जगह मास्टर्स, अगर आप कार्डियो में आपका इंटरेस्ट है, हार्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट है, सो यू कैन बी अ कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपको बोन्स में इंटरेस्ट है तो आप ऑर्थोपेडिशियन बन सकते हैं। बच्चों के साथ इंटरेस्ट है, सो यू कैन बिकम अ पीडियाट्रिशियन। हियर आई वांट टू ऐड सम फैक्ट्स कि इसमें भी नीट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। विदाउट नीट इट इज इम्पॉसिबल। अगेन यहाँ पर ये है कि हर इंसान को, हर स्टूडेंट को अपनी वीकनेस का पता होता है कि यार मेरा ये वाला वीक है, ये वाला पोर्शन दिस इज वीक और दिस पोर्शन इज स्ट्रॉन्ग। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनली एवरीवन नोस कि वो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वो वीक है। सो अगर आप एमबीबीएस में या बीडीएस में या हमारे मेडिकल की अलग अलग कुछ लाइंस ऐसी हैं जो बिल्कुल डॉक्टरेट लाइंस हैं, बीपीटी में, बीओटी में भी इवन अगर आप इनमें एडमिशंस लेते हैं तो आपको पहले से ही ये चीज के लिए बहुत ज्यादा श्योर होना है कि यस यू आर करेजियस, आप इसमें कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना मैंने बोला है हाँ भाई आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यू आर हार्ड वर्किंग सो यू कैन अचीव। you can definitely achieve if you are doing hard work, but the important thing is you have to understand, you have to interpret the qualities which are hidden in yourself. Okay, after that you can take admission. So let's study about NEET now कि NEET जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, NEET के थ्रू ही आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होता है थ्रू दी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एकेडमी फॉर एमबीबीएस एंड अदर मेडिकल कोर्सेज। सब्जेक्ट जो आपके 11th-12th में होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 720 मार्क्स का पेपर होता है। देयर आर 140 क्वेश्चंस मे बी, यस 140 क्वेश्चंस, sorry 180 questions are there। बायोलॉजी के 90 questions होते हैं, that is 50% of the exam। फिजिक्स के 45 and chemistry के 45, so total 180 questions are there, out of which each question it is of 4 marks and total marks 720 है, जिसमें से अलग अलग कट ऑफ जाती है। आफ्टर द कट ऑफ काउंसलिंग्स होती है। काउंसलिंग के अलग अलग राउंड्स हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है तो उसमें क्या होगा, यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, आपकी रैंक कहाँ पर लाई कर रही है उसके अकॉर्डिंगली, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलती है। यहाँ पर हम एक और चीज ऐड करते हैं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट देन यू शुड take proper focus and you should focus properly on the NCERT। NCERT के बाहर बहुत कम चीजें आती हैं। पहले के टाइम पर, मतलब आज से 3-4 साल पहले, फिजिक्स के क्वेश्चन काफी हाई ऑर्डर आते थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस आते थे, हॉट्स आते थे। लेकिन अब आज के प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे 2 साल से ये देखा जा रहा है कि जो फिजिक्स का पेपर है वो थोड़ा सा पहले के कंपैरेटिवली इजी हो गया। ठीक है, सो फिजिक्स पर और केमिस्ट्री में यू हैव टू फोकस वेरी प्रॉपर्ली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ क्लास 12th एंड 11th। एंड बायोलॉजी 50% है तो ये तो अंडरस्टूड है कि यार 50% अगर मैं स्कोर करना है सो बायो शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। सो बायो की प्रिपरेशन के लिए, एज आई एम ए बायोलॉजी टीचर, सो आई एम मेंशनिंग हियर दैट बायोलॉजी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी को भी अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो देन यू कैन सक्सीड इन बायोलॉजी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग रखना है। अलग अलग लैंग्वेजेस में ये एग्जाम जो है अवेलेबल है, अगर आप जिस भी लैंग्वेज में लेना चाहो आप ले सकते हो। एग्जाम मोड पेन एंड पेपर बेस्ड है, आप जाते हो और उसमें पेन एंड पेपर के बेसिस पे एग्जाम है। 3 आवर का एग्जाम होता है ये ड्यूरेशन, और इसमें कुछ पहले से ही आपको जाने से पहले कुछ गाइडलाइंस होती है तो वो आपको पढ़नी पड़ती है। यू कैन गो फॉर दैट गाइडलाइंस ऑन द इंटरनेट। ओके, so now we have BCA course, so over to you Mr. Gurpreet for computer science students। Okay, thank you, Mr. Aman, for explaining the medical field. And now, next field is engineering. So, how many students here for engineering background for computer science? May I know? Hello. May I know how many students are here for computer science background?
Okay, so I'm assuming there are many students from computer science background as well. So let's start, not first of all, not from BCA, but let's start with an engineering subject, BTech, which is Bachelor of Technology. You might be aware of the technology field, like engineering field BTech, which is the most coverage of the engineering field. So admission process is simply through entrance exam. Like if you will go with the IP University, then you will have entrance exam of IP University. And if you will prepare for JEE Mains, JEE Advanced, and other colleges like BITS Pilani, you may be aware of BITS Pilani, which is a premier college for engineering. So they have they have their own paper, BITS Pilani paper. So JEE Mains, JEE Advanced are mainly national level exams. For BITS Pilani, there is a separate paper for BITS college only. So after BTech, your profile will be like software developer, testing tester, chemical engineer, robotics engineer, automobile engineer. All are mentioned in this slide. So let's start with what is engineering and what is coding. You are using many apps, right? In your mobile, Android mobile or Apple mobile, you are using many apps. So there is a background code running over it. So then you are using those apps like Facebook, WhatsApp. There is a background code running in the process, right? So all the software developer actually codes, and then code require testing, and then after all phases, apps are made, a website is made. So this is engineering. So in the coming slides, we will also describe how medical and engineering are interlinked and how they have a different career options. What is the route after BTech? There is a MTech and then PhD for the research purpose. But first of all, BTech, and then you should have, for according to my opinion, you should have at least 2 to 3 years of experience in field, and then you should focus forward to the research line like MTech and then PhD. So second is BCA. Might be like आपका exams, entrance exam BTech के clear नहीं होते हैं, then you will focus on the BCA MCA field, which is also equivalent to BTech. Okay. So admission process is similar. Like आप entrance exam IP University का, दिल्ली University का देते हैं, and by merit purpose आप admission process को clear करते हैं. Then duration is different from BTech. BCA requires only 3 years. 3 years में आपका BCA हो जाता है, and then MCA भी आपका 3 years का है. So total it requires 6 years to be an engineer. But BTech अगर आप करते हैं, which I already told you, like which is the main field of engineering, so it requires only 4 years. But if you choose BCA MCA line, then it requires obviously 6 years. So top recruiting areas like the renowned companies like Infosys, TCS, Accenture, Capgemini, these are the well-known companies in which you will be hired after BCA itself. But according to my opinion, if you are choosing BCA, then आपको MCA भी complete करना चाहिए, so that आपकी जो posting है, आपकी जो profile है, वो as an engineer count हो, ना कि मतलब as in like software professional or software you can say operations executive. Should not be like this profile. So being an engineer, you should complete MCA if you are choosing BCA, right? So job profiles are mostly similar: software developer, technical analyst, which actually analyze the code, system administration, like there are networking systems, software developing systems, okay, programmers. So all requires administrators. So these are the system administrators. Technical support is like आप Amazon यूज करते हो, Flipkart यूज करते हो, तो उसके पीछे एक टीम बैठी होती है जो कि वो एक वेबसाइट को सपोर्ट देती है, टेक्निकल सपोर्ट. माइट भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपका ऑर्डर इनकम्प्लीट रह जाता है, ऑर्डर प्लेस नहीं होता, तो उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट टीम आपका हमेशा मतलब इन द सेंस हमेशा अवेलेबल होती है. So this slide explains the difference between BCA and BTech. I already explained BCA 3 साल का कोर्स है और BTech 4 साल का कोर्स है. बीटेक के बाद एमटेक 2 साल का कोर्स है, बट बीसीए के बाद एमसीए 3 इयर्स का कोर्स है. सो बीटेक के साथ एमटेक करते हुए आपको 6 इयर्स लगेंगे, एंड बीसीए और एमसीए करते विच इज इक्विवेलेंट टू बीटेक, it requires itself a 6 years program, right?
Eligibility is 12th class with maths, and in BTech class 12th with science stream. Like BCA में कई बार कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी आ जाते हैं कि उन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी कर सकते हैं, बट उन्हें मैथ्स कंपलसरी है, विदाउट कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले नहीं कर सकते, राइट? Then it comes to BSc IT, Bachelor of Science in Information Technology. ये भी slide एकदम similar है. Today I'm not going to focus about what are the main entrance exam for these separate fields, because we will also share this slide in the WhatsApp group, and we will also post this slide in the YouTube channel. So here I will only describe what are these fields and what is the career options after you passing these fields. So BSc IT also requires 3 years of course, which is also merit based and entrance exam. Like Delhi University merit based लेती है, आपका 95 या 96% से above आता है, तो क्रीमी लेयर आ जाती है, उस केस में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा हैं. Otherwise you will choose the entrance test. Like I have been a part of IP University, that's why I'm focusing on the IP University. IP University का exam होता है entrance exam, which comes in the month of March or April, and by June or July they'll complete the entrance exam phase, and by August you will start preparing for your further studies. You will start your further studies. So duration is 3 years. Higher education is MSc IT. Job profiles are somewhat similar. Top recruiting areas like in IT field, IT companies like TCS, Infosys. TCS is Tata Consultancy Services. Infosys is a big brand. Other companies like Capgemini और Google, Microsoft. Like मैंने बताया था कि कुछ एग्जाम्स होते हैं JEE मेंस, उससे आपका जो एडमिशन होता है IITs वगैरह में हो सकता है, तो वहां पर क्रीमी लेयर कंपनीज आती हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जिनका मतलब एक इनकम वाइज भी देखा जाए तो बहुत अच्छी इनकम, बट यू राइट नाउ यू शुड नॉट फोकस अबाउट द इनकम, यू शुड फोकस अबाउट द नॉलेज, यू शुड फोकस अबाउट योर स्ट्रीम. सो आईआईटी में एडमिशन होने के बाद तो आपका करियर एवरग्रीन है. आपकी जो कंपनीज में प्लेसमेंट होगी वो लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विच आर द creamy companies in the IT industry. So let's start with BR, Bachelor of Architecture. Here this fields involves the architectural designs, like designs के बारे में आप पढ़ोगे, architecture department के बारे में पढ़ोगे, Ministry of Defense में आपकी जॉब लग सकती है, right? आर्किटेक्ट होते हैं जो कि डिजाइन करते हैं, फुल डिजाइन, मतलब डिजाइन करते हैं पूरा. आर्किटेक्ट लाइक टेक्निकल आर्किटेक्ट टेक्निकली डिजाइन करता है, फंक्शनल आर्किटेक्ट फंक्शनली सारा कुछ डिजाइन करता है इन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव्स. सो एडमिशन प्रोसेस is through NAT exam or other architecture entrance exam. Like different colleges के different exams होते हैं. So this field actually requires 5 years. Why? BTech requires 4 years. This requires 5 years. Why? इसमें आपका एक उसे आप कहते हो कि आपका 4 years complete होने के बाद किसी कंपनी में आपकी इंटर्नशिप लगती है, which is of around 1 year. आप 1 year इंटर्नशिप लेने के बाद आप इंजीनियर कहलाओगे, which is called architecture engineer. So in this field also higher education is MArch, Master of Architecture, and after this you can go into the research work, or you can simply do job in this field. So similar to BTech in biotechnology. So BTech in biotechnology also require exams like JEE Mains, JEE Advanced, BITS Pilani ka BIT set. Okay, so it requires also 4 years, and higher education is MTech, MS and PhD. इस स्लाइड में मैं MS पर फोकस देना चाहूंगा. दिस इज MS is somewhere different from medical field. Like in medical field आप कहते हो मास्टर ऑफ सर्जरी, but in engineering field you will say it like masters of science. So masters of science आप BTech के बाद भी कर सकते हो, आप अपनी MTech के बाद कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हो. So it requires actually your mastery in science, like research in science, how the codes are being developed. आप apps use करते हो, बहुत easily आप use करते हो, आप WhatsApp use करते हो, how these messages are being sent to a sender to a receiver, right? So obviously you will learn a lot in the engineering field, how these background processes are running, how you are actually sending the WhatsApp messages, and अगर रिसीवर का नेट ऑन नहीं होता तो उसको सिंगल टिक आता है, उसके पीछे भी एक कोड होता है. फेसबुक पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, उसके पीछे भी एक कोड होता है, राइट? सो दिस ऑल यू विल लर्न इन द इंजीनियरिंग फील्ड.
So let's come again to the medical field, which is going to start by Dr. Aman regarding BPT, Bachelor of Physiotherapy. Over to Mr. Aman. ओके, सो बीपीटी, जिसके बारे में कई लोगों को काफी मिथ होते हैं कि इसको कभी किसी नाम से जाना जाता है. Sorry, there are some technical issues. Okay, so let's continue once again. BPT, Bachelors of Physiotherapy. After the Bachelors of Physiotherapy, you can also add doctor with your name. So this is the most important thing. जो बच्चे सर्च करते हैं बड़े कंफ्यूज होके कि यार अगर हम बीपीटी कर रहे हैं, हम एमबीबीएस नहीं कर रहे, so can we add doctor with our name? Yes, you can. You are doctor because the studies are almost same in the BPT and MBBS and BDS. So BPT करनी किसको चाहिए? If you want to treat patient, अगर आप patients को ठीक करना चाहते हैं by the physical methods, physiotherapy means physical therapy. You are treating the patient by moving his body, his or her body. So अगर आप body में mechanics को include कर रहे हो, then you are a physiotherapist. Okay. आफ्टर फिजियोथेरेपी there are so many lines. स्पोर्ट्स में अगर आपने देखा हो तो स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा स्कोप है. आफ्टर दैट डिफेंस के अंदर जो आर्मी में जाते हैं, दे नीड फिजियोथेरेपी. उनकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए दे रिक्वायर फिजियोथेरेपी रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स. इसके अलावा यू कैन गो फॉर अ न्यूरो फील्ड. आप न्यूरोलॉजी के फील्ड में जा सकते हो, कार्डियोलॉजी के फील्ड में जा सकते हो, ऑर्थो फील्ड में जा सकते हैं, गाइनी, पीडिया. देयर आर सो मेनी फील्ड्स एज इन द केस ऑफ द एमबीबीएस. ओके, सो बोथ आर रिलेटिवली सिमिलर टू ईच अदर. अगेन अलग अलग कॉलेजेस की अपनी अपनी अप्रोच है, अपने अपनी गाइडलाइंस है. सो कुछ कॉलेजेस में मेरिट बेस्ड है, मे बी नॉट इन दिल्ली, बट इफ यू आर इन दिल्ली then you have to give a entrance. After the entrance counseling वगैरह होती है. जब आप 12th complete कर लेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, and then you can do BPT अगर आपकी रैंक अच्छी जगह लाई करती है तो. इसके अलावा जो हमारी बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, जिसको हम ओटी भी कहते हैं, बीओटी, इट इज आल्सो लिटिल बिट सिमिलर टू फिजियोथेरेपी. बट हियर ऑक्यूपेशनल थेरेपी मींस वी आर यूजिंग द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, they are using some different kind of instruments to make the body fit, to make the body clear of any kind of clinical anatomy and disease. So mainly जो old age homes होते हैं, उन लोगों को कहीं पर इंडल्ज करके रखना कि यार ये अकेले हैं, सो ये कहीं साइकोलॉजिकली ये स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, इनका एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा. या उनकी बॉडी को फिट रखने के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ बॉल्स होती हैं या देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स जिसके यूज के थ्रू दे कैन स्टे फिट, दे कैन मेक देयर टाइम एंजॉयबल. ओके, आफ्टर दैट कुछ छोटे बच्चे जो हैं, आप मे बी आप सबने इतना नहीं देखा होगा, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वी आर इन द हॉस्पिटल डेली एंड देन वी ऑब्जर्व देयर कि बहुत ज्यादा छोटे बच्चे जो 1 ईयर 2 ईयर के बच्चे जो हैं, कि किसी का पैर मुड़ा हुआ है या कोई चल नहीं पा रहा, किसी को स्पीच प्रॉब्लम है, वहां पर भी ओटी का और फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, सेरिब्रल पाल्सी है, तो वहां पर भी ओटी और फिजियोथेरेपी की कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक सिखाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वैसे तो पीटी और ओटी मतलब फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी को पैरामेडिक्स में रखा गया है, बट दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द medical research team and the medical team in the hospital. So hospitals के अंदर with doctor always is a physiotherapist along with that, so that we can treat. कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोस करके मेडिसिन देते हैं, और वो मेडिसिन जो है वो डिजीज को ट्रीट करता है, लाइफ देता है, बट लाइफ को जो बढ़ाने का काम है वो ओटी और पीटी करवा रहे हैं. ठीक है, सो इसके लिए भी डायरेक्ट एडमिशंस भी होते हैं और आपको एंट्रेंस भी देने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज दी बी फार्मा, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी. Again, admission process is through merit and entrance examination. It is a 4-year course. जो हमारी बी फार्मा है, इसके थ्रू आप ड्रग्स की रिसर्च कर सकते हो, आप ड्रग्स बना सकते हो, जो मेडिसिन हैं वो बनाई जाती हैं. ठीक है, इसके अलावा
Sorry, there are some technical issues in my area. Okay. सो बी फार्मा से आप जो केमिस्ट की शॉप्स हैं या जितने भी हमारे केमिस्ट हैं या जो मेडिकल्स में होते हैं जो फार्मा पढ़ते हैं, फार्मा इज रिलेटेड टू द information of the medicines, the information of the drugs, that how they are acting on the body, which drug is appropriate in which situation, in which age. There are different factors. तो आप नॉर्मली नहीं कह सकते यार सिर दुख रहा है हम कॉम्बीफ्लेम ले लेते हैं या पैरासीटामोल ले लेते हैं. नो, जो फार्मा कर रहा है, जो मेडिकल फील्ड में है, वो उसके बारे में फार्मेकोलॉजी में सब कुछ डिटेल में पढ़ता है. आफ्टर दैट वो डिसाइड करता है कि यार हमें किस ड्रग का कब यूज करना है. सो हायर एजुकेशन इज एम फार्मा, पीएचडी, फार्मा डी. ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि कई लोग डी फार्मा करते हैं. डी फार्मा इज डिप्लोमा इन फार्मा. जो डिप्लोमा करते हैं फार्मा में, दे कैन ओनली ओपन देयर केमिस्ट शॉप. वो अपनी केमिस्ट की एक शॉप खोल सकते हैं, बट दे कांट वर्क इन दी हॉस्पिटल्स, इन दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर एरियाज. ठीक है. सो अगर आप डी फार्मा कर रहे हो, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, ठीक है, बट हाँ उसका उतना ज्यादा स्कोप नहीं है जितना बी फार्मा और एम फार्मा का है. एम फार्मा अगर आप कर लेते हो तो आप आगे ड्रग्स की रिसर्च में मास्टर्स कर रहे हो. यू कैन रिसर्च एंड यू कैन डिस्कवर न्यू ड्रग्स. जो आज के टाइम पर चल रहा है कि कोविड है, so we need vaccine as soon as possible. So the pharmaceutical companies, the B Pharma, the biotechnologists, they are working on the vaccines. हर एक लाइन के अंदर in today's world competition is very high, you all know. तो जो डिमांड है वो क्या है कि किसका सीवी, किसका रिज्यूमे जो आ रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरुआत से ही अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसमें कुछ एडिशंस डाल सकते हो which can act as a sparkling stars in your CV. So डिप्लोमा कोर्सेज आपके सामने कुछ लिखे हैं, इसमें आपको रेगुलर जाना नहीं है. You are doing your bachelor degree, but along with that bachelor degree, अगर आप ये डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं, then your CV become more effective, more efficient, more appropriate. So your chances of job it gets increases. So we have DNHE, Diploma in Nutrition and Health Education, DNYS, Diploma in Naturopathy and Yoga Sciences or Yogic Sciences, DAFE, Diploma in HIV and Family Education, DECE, Diploma in Early Childhood Care and Education. So these 4 diploma आप अभी 12th के बाद अगर आप ड्रॉप भी कर रहे हो, so please do any one of the diploma along with the drop. So at least आपका एक साल वेस्ट नहीं होगा. BAMS, that is Bachelors of Ayurvedic Medicine and Surgery, and BHMS, मैं दोनों को combine करके बता रहा हूँ. In Ayurveda, आप आयुर्वेदिक चीजों को यूज कर रहे हैं. We are using the nature. Okay, we are using the tree leaves, seeds, bark of the tree, the fruits of the tree to treat and to cure the diseases. In homeopathy also there are several different, little bit difference from the Ayurveda, कि वहां हम कुछ ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो थोड़ा स्लो काम करती है, लेकिन हाँ दे आर ऑल्सो इफेक्टिव. सो इन दोनों के अंदर BAMS एंड BHMS में भी स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है. आप आगे MD कर सकते हो. डॉक्टर हैं आप, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक्स. एंड आयुर्वेदा का स्कोप एंड होम्योपैथी का भी स्कोप आउट ऑफ इंडिया और भी ज्यादा है. इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया और भी ज्यादा है. ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द MBBS एंड एंट्रेंस एग्जाम दोनों में important as you become a doctor. So this is crucial. Okay, so we are talking about BSc nursing. BSc nursing जो है ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कोर्स है. गौरव, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, सो BSc नर्सिंग अगर मैं बोलूं तो गर्ल्स के लिए तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा है फील्ड, क्योंकि इसका आगे स्कोप बहुत हाई है. अगर MBBS डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हमारे इंडिया में ज्यादा है तो नर्सेज की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज्यादा है. नर्सेज आर दी सोल ऑफ द हॉस्पिटल्स. ठीक है, तो ये एक काफी अच्छा फील्ड है. इफ यू गो इन द नर्सिंग देन ये अच्छा फील्ड है, तो आप इसका ध्यान पहले से रखना. जनवरी में या दिसंबर में एम्स के नर्सिंग के फॉर्म्स निकलते हैं. अगर आप BSc नर्सिंग करते हो फ्रॉम एम्स, उसके बाद आप MSc नर्सिंग कर रहे हो, देन इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. Okay, for females it is the most appropriate. Males के लिए भी BSc नर्सिंग में स्कोप है, ऐसा नहीं है, बट फीमेल्स के लिए ज्यादा अच्छा है. जॉब प्रोफाइल, केस मैनेजर्स एंड इन द नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स,
सर्टिफाइड नर्स MD वाइफ, एंड क्लिनिकल नर्स होती हैं अलग अलग फील्ड की, स्पेशलिस्ट नर्स है, सर्जन है तो सर्जरी में कौन सी वाली नर्सेस जाएंगी, नर्सिंग मैनेजर्स होती हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं. सो इट्स अ गुड, nice, we can say it's a very beautiful course. I personally wants to say and wants to deliver in this session that every girl should definitely and should surely fill the form of BSc nursing, okay, so that your future is in the safe hands. BSc MLT मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जितने HOD है या डॉक्टर लाल पैथ लैब्स आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है. जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट, विटामिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है, LFT, KFT, थायराइड टेस्ट, जितने भी हमारी बॉडी में टेस्ट होते हैं वो लैब टेक्नीशियंस करते हैं. सो जो लैब टेक्नीशियंस हैं या मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, they have to give an entrance exam, और कुछ कॉलेजेस में मेरिट बेस्ड होता है. ड्यूरेशन इज 3 ईयर. हॉस्पिटल्स में, मिलिट्री सर्विसेज में, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में, ब्लड डोनर सेंटर्स में इनका काफी अच्छा रोल रहता है. ठीक है. आफ्टर दैट यू कैन डू MSc MLT ऑल्सो. ठीक है. लैबोरेटरी टेक्नीशियन, laboratory manager, medical officer, there are so many different fields. We will share this PPT in the group. So BSc MLT, yes, again I'm not saying कि कोर्स बेकार है, स्कोप इसमें भी है, लेकिन not much. Okay, so you have to do hard work, but a lot of hard work is required in this field. जैसे डॉक्टर लाल है, उन्होंने आगे अपनी एक बनाई है, HOD है, डॉक्टर लाल है, उनके अलग पैथ लैब्स हैं. So it requires a lot of hard work. नेक्स्ट इज द BSc OTT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी. इसमें आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितनी टेक्नोलॉजीज यूज करी जाती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाते हैं, उनको मैनेज करने में आप हेल्प करते हैं. सो डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ आपके साथ और भी कई सारे मतलब जो हैं डिपार्टमेंट में OTT MLT वाले भी होते हैं. सो देन दे कैन कंबाइनली अश्योर कि जो प्रॉपरली डायग्नोस और प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं. Bachelors of optometry, it is related to eyes. You want to give vision to someone, you can become an optometrist after that. The duration is 4 years. Counseling है after taking relevant entrance examination. Here कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने optometry कर लिया so they are doctors. No. अगर आप MBBS कर रहे हैं, उसके बाद आप MD या MS जो है वो eyes में कर रहे हो, तब आप professional medical doctor हो. If you are doing the bachelor's in optometry, then you are just an optometrist. आप spectacles या glasses जो भी हैं, किसी को eyes check करना, ये करते हो. Eye surgeries are not allowed for the optometrist. Again, a new and the important and a good course is radiography. आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है. एक्सरे टेक्नीशियंस, थेरेपी रेडियोग्राफर, रेडिएशन प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट, और अलग अलग हमारे जॉब के एरियाज होते हैं. एक्सरे लेना, MRIs, ये सब के अलग अलग सेंटर्स हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत ज्यादा होते हैं. और अगर आप ये किसी वेल नोन हॉस्पिटल से करते हो तो इट इज टू गुड. तो अगर आपका नीट में एडमिशन नहीं हो रहा है, सो डोंट गेट डिप्रेस्ड फ्रॉम दैट. ऑलवेज हैव अ सेकेंडरी चॉइस विद यू कि अगर हमारा ये नहीं हुआ, सो यस वी कैन डू दिस एंड वी कैन डू एक्सेल इन दिस. सो जब भी आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो ये सोच कर जाओ कि यस वी हैव टू डू, आई हैव टू डू एक्सेल इन दैट फील्ड. Okay, so after the completion of this session, we will have a question answer round. If you have any kind of problem, any kind of query, then you can ask Mr. Gurpreet any computer science query. And if you have any medical query, then you can ask me. सर ये जो ड्रॉप लेते हैं उसके बाद तो Aman, you are not well audible. सर हम ड्रॉप लेने के बाद सर जो आपने भी डिप्लोमा का मेंशन करा था DNYS DNHE, सर उसका क्या प्रोसीजर होता है करने के लिए? बच्चे उसका जो प्रोसीजर है उसका अलग अलग होता है. देखो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो कि DNYS कराते हैं. DNHE
DECE और DAFE जो 3 कोर्सेज हैं वो इग्नू के थ्रू होते हैं। इग्नू का नाम सुना होगा आपने, क्योंकि जो ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये इनका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग कर सको या आप अपने डिग्रीज को बढ़ा सको। ठीक है, सो इनके लिए इग्नू अभी खुली हुई है वेबसाइट में भी। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जो आप 12th के साथ साथ भी कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में आप अपने नाम के साथ वो डिग्री भी ऐड कर सकोगे। सो ये जो कोर्स है, आप अभी इग्नू की प्रोफेशनल साइट जो है, ऑफिशियल साइट गूगल पे जाके चेक करना, वहाँ फॉर्म्स निकले हुए हैं इस टाइम। अगर आपके क्राइटेरिया में वो आते हैं तो आप उसको फिल कर सकते हो अभी। ठीक है, उनके बारे में प्रॉपर प्रोस्पेक्टस भी वहां पर अवेलेबल है। एनी अदर डाउट टू एनीवन? So we will also post this all queries to YouTube channel. So we welcome your all doubts. So please ask. सर हेलो Yes, हाँ जी गौरव। सर मैं पूछ रहा था सर, जैसे हम बी फार्मा या डी फार्मा करते हैं तो सर उससे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो जरूरी है कि नीट ही होगा? नहीं नहीं, बी फार्मा के लिए नीट नहीं होता है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं जो बी फार्मा के लिए नीट मांगते हैं, बट बी फार्मा का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, अपने अपने कॉलेजेस का अलग अलग एंट्रेंस होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है ओके नीट सर। हो, लेकिन हाँ कुछ कॉलेजेस हैं ऐसे जो नीट भी मांगते हैं कि आपने नीट एटलीस्ट आपने उसको क्वालिफाई करा हुआ हो। ओके सर। Okay, so there's a question in the chat box from Mansi. Sir, is it compulsory to complete post basic nursing after BSc nursing to work in a hospital field? Mansi, can you please unmute yourself and speak your question? It is not well clear to me. सर, अगर हमें हॉस्पिटल फील्ड में काम करना है तो मतलब पोस्ट बेसिक मतलब बीएससी करने के बाद जो 4 ईयर की कोर्स होती है उसको करने के बाद हमें मास्टर्स करना जरूरी है अगर हमें हॉस्पिटल फील्ड में काम करना है तो? ओके, सो नहीं, बीएससी नर्सिंग के बाद भी आप हॉस्पिटल्स में काम करते हो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के बाद पहले आपकी इंटर्नशिप होती है हॉस्पिटल में, उसके बाद आप जाके एमएससी नर्सिंग करते हैं। ठीक है, एमएससी नर्सिंग करने का, मास्टर्स करने का मेन फोकस आज के टाइम पर ये है कि इतने हाई कंपटीशन में मास्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी कार्डियो के, आप किसी हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं, विक्टिम्स हैं, आप उनके डिपार्टमेंट में आप एक नर्स की तरह काम करो, सो यू हैव टू डू एमएससी नर्सिंग फॉर दैट। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में, आप एम्स में लगना चाह रहे हो, यू हैव टू डू एमएससी नर्सिंग। अगर आप छोटे मोटे क्लिनिक में लगते हो या जो नॉर्मल नर्सिंग होम्स है तो उसमें आप बीएससी नर्सिंग इज आल्सो गुड। आफ्टर बीएससी नर्सिंग अगेन डिप्लोमा कोर्सेज हर लाइन में अपने अपने होते हैं। ठीक है, मैंने जो आपको डिप्लोमा बताया, मैंने मेडिकल के कुछ डिप्लोमा बताए। अगर आप ये डिप्लोमा करते हो तो वो आपकी बीएससी नर्सिंग को ऑब्वियसली इनहैंस करेगा कहीं ना कहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। लेकिन आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि आज के टाइम पर अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो प्लीज गो फॉर मास्टर्स आल्सो। ओके, थैंक यू सर। Any query to anyone related to सर engineering and medical? सर डिप्लोमा कौन सा बेस्ट होगा? मतलब पर्टिकुलरली हमें कोई कोर्स करना है, मतलब एमबीबीएस करना है, तो उसके हिसाब से हमें कौन सा डिप्लोमा बेस्ट होगा? Okay, Vanshika, if you are doing MBBS, okay, so उसके साथ जितने भी डिप्लोमा मेडिकल रिलेटेड होंगे वो अच्छे होंगे। You are doing MBBS, और अगर आपने MBBS कर ली तो उसके बाद आपको डिप्लोमा की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में MBBS इट्स अ वेरी गुड कोर्स है ना। बट स्टिल यू वांट टू एनहांस योर डिग्री कि लिखा होगा डॉक्टर वंशिका तो नीचे MBBS के साथ 1-2 डिग्रीज और हो। ओके, सो आप HIV और फैमिली एजुकेशन वाली जो मैंने दिखाई आप वो कर सकते हो, चाइल्डहुड केयर वाली कर सकते हो, सो रिलेटेड टू मेडिकल करो। अगर आप नेचुरोपैथी वाली करोगे तो वो आपके MBBS फील्ड से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। MBBS इज रिलेटेड टू मेडिसिन्स, नेचुरोपैथी इज रिलेटेड टू नो मेडिसिन्स, है ना। तो ऐसा कोर्स करो जो कि आपकी डिग्री के साथ मैच करता हो। आप MBBS कर रहे हो, यू कैन डू DNHE, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन।
सो दैट जो आपके पेशेंट्स होंगे आप उसको एमबीबीएस के बेसिस पे जब ट्रीट करोगे तो आप उसके साथ कुछ वैल्यूज या कुछ चीजें डायग्नोस करके न्यूट्रिशन की ऐड कर सको कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है और ये चीज आप अवॉइड करिए, आप उसकी हेल्थ को समझ पाओ प्रॉपरली। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेरी? एमबीबीएस के बाद सर एमएस करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम होता है? यस, नीट। नीट आपको हर जगह मिलेगा। एमबीबीएस से पहले नीट इज यूजी, नीट यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट नीट। आफ्टर एमबीबीएस यू हैव टू गिव नीट पीजी, पोस्ट ग्रेजुएटेड नीट। Any queries? सर एमबीबीएस के बाद मास्टर्स करना जरूरी है? सी जरूरी है, अगर मैं रियलिटी में बोलूं तो जरूरी है। जो मैंने देखा है हॉस्पिटल्स में उसके बेसिस पे जरूरी है। अगर आपने एमबीबीएस करी हुई है तो आप एक बहुत जेआर मतलब जूनियर डॉक्टर बन के रह जाओगे हॉस्पिटल्स के अंदर, है ना। तो उसके साथ यू हैव टू एनहांस योर नॉलेज। एमएस और एमडी अगर आप करते हो तो वो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगी और कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी बढ़ेगा। मैंने कई सारे, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड डॉक्टर शादाब, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय एंट्रेंस कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कभी भी उनकी पढ़ाई खत्म नहीं होती। ठीक है, सो अगर आपने एमबीबीएस कर ली, यू हैव टू डू एमडी। एमडी कर ली तो आप कहोगे यार कोई और डिग्री ऐड कर लेते हैं, कोई और डिग्री ऐड कर लेते हैं। जितनी डिग्रीज ऐड होती जाएंगी उतनी सैलरी के आगे जीरो ऐड होते जाएंगे। सो ऑब्वियसली डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ओके सर। सर जेई का क्या पैटर्न होता है? हेलो हेलो सर जेई का प्रोसीजर क्या है, उसका स्कोप क्या है आगे? जेई में जैसे मेडिकल फील्ड का बताया कि आपको बायोलॉजी का एटलीस्ट 50 to 60। आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस ड्यूरिंग माय 11th and 12th studies, and after that I chose engineering as my further studies. But in engineering, मेडिकल में जैसे आपका बायोलॉजी का 50 to 60% कवरेज होता है, बट इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स you will have most coverage of physics, chemistry, maths and English, equal coverage of all these studies. So JEE means JEE advanced and all engineering entrance exams आपका physics, maths या all subjects other than biology strong होनी चाहिए. Sir, if my physics is not that good, still I can go for JEE exam, or should I opt for anything else? You should prepare well your physics and maths, most appropriately physics and maths. एंड इंग्लिश तो आपका मतलब हो ही जाता है। ड्यूरिंग माई स्टडीज जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो मैंने इंग्लिश को प्रिपेयर सेपरेटली नहीं किया था, क्योंकि उसमें आपके वर्ब्स एंड ऑल मतलब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एनीबडी लाइक आफ्टर 12th कोई भी आई थिंक क्लियर कर सकता है, बट यू शुड हैव वेल डिफाइंड नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स इन द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। अदरवाइज मतलब आपका स्कोर इतना नहीं आएगा कि आप क्रीमी लेयर कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओ लाइक IITs. Otherwise, there are other entrance exams like IP University exams, BITS planning exams, but there also physics and maths are very important. आपको Okay, टाइम thank you, देना ही sir. पड़ेगा फिजिक्स मैथ्स में। थैंक यू। So at last, I would like to congratulate all of you and for being a part of this session. And I hope and I must hope like you will do the best of your potential in the coming future. Congratulations and thank you. Sir, one more question. Okay. Yes.
Yes, आई एम please. इन क्लास 12 तो मुझे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि मुझे ड्रॉप नहीं करना चाहती हूँ. So you are in class 12th. So आप Yes. जैसे एक क्लास 12th की फेमस बुक, लाइक आई थिंक सारे ही उसे पढ़ते हैं, प्रदीप्स फिजिक्स, राइट? सो मैं क्या करता था उस टाइम, जितना मुझे याद है, कि उसके जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टॉपिक के आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. काफी स्टूडेंट्स ना फिजिक्स में ऐसा करते हैं, वो थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं बट प्रैक्टिकली सोचते हैं हमें फॉर्मूला याद है, कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे अटेम्प्ट कर लेंगे, चाहे हम उसे सिर्फ अटेम्प्ट करके छोड़ देंगे, एटलीस्ट फॉर्मूला तो अप्लाई किया होगा ना. बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे. If you have to be a part of engineering and medical field, then you should have complete focus. Like if you are doing physics, तो physics के exemplar questions, practice questions आपको attempt पूरे करने चाहिए during your practice. You should not think like, मैंने ये point इसलिए ऐड किया क्योंकि काफी students ऐसे करते हैं, हमें formula याद है, हम किसी भी question में समझकर हम formula apply करेंगे और निकाल ही देंगे आंसर, but ऐसा नहीं होता. So in physics, प्रदीप आप फॉलो करो, हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज चलो, एंड देन हर एक चैप्टर के एंड में उसके हॉट्स क्वेश्चंस होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, सो उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. So during your 11th and 12th, it is the fundamental aspect for your further studies. Like आप entrance exam में सब कुछ वही देखोगे जो आपका 11th 12th में आपने किया होगा. None other than this. So we Okay, have one thank you. more doubt in the chat box. Meenakshi, sir, which diploma is best after MBBS? Okay. So मैंने जितने डिप्लोमा बताए हैं वो आफ्टर MBBS के लिए नहीं बताए, मैंने इसलिए बताए हैं कि आप MBBS के साथ साथ या MBBS के पहले ही उसको कवर कर लो. Because after MBBS you have not much time left with you. आपको ऑलरेडी नई चीजें कहीं एक्सप्लोर करनी है. सो अभी आप 12th में हो, दिस इज द बेस्ट टाइम. आपको पहले से बहुत अच्छी गाइडेंस दे दी है हमने अपनी तरफ से कि आप आज ही गूगल खोलो, वहां डालो मेडिकल डिप्लोमास फ्रॉम इग्नू, बिकॉज इग्नू इज अ वेल नोन यूनिवर्सिटी नाउअडेज. ठीक है, और उसमें जो डिप्लोमा आपको लगता है, क्योंकि वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इट्स इजीली अफोर्डेबल, सो यू कैन अफोर्ड दैट. ठीक है, तो आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करो, प्रोस्पेक्टस को रीड करो कि कौन से डिप्लोमा में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, और जो आपको लग रहा है कि आपके मेडिकल से रिलेटेड है, सो गो फॉर दैट. यू हैव टाइम राइट नाउ, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता. डिप्लोमा में बहुत ज्यादा पढ़ने की कुछ खास जरूरत नहीं होती. 1 साल का ही डिप्लोमा होता है या कुछ 2 साल के होते हैं. यू हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट एंड जस्ट आफ्टर दैट योर डिप्लोमा इज फिनिश्ड एंड कंप्लीटेड. यू कैन ऐड दैट डिग्री विद योर नेम. डू वी हैव एनी मोर क्वेरीज? Okay, so thank you so much, Mr. Gurpreet, for enlightening our students today. Thank you so much. We are sending the PPT in the WhatsApp group. If you still have any kind of doubt, then you can ask in the WhatsApp group just for today. After that, tomorrow we will delete the group. Thank you so much, everyone. Your presence is highly appreciable. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.